Good morning, class 10th. So, as we are continuing chapter number 6th, manufacturing industries from class 10th geography. Yesterday, we have revised about textile industries as well as we have begun a new topic, that is cotton textile. हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरा रिवीजन किया था कल, उसके पहले के लेक्चर्स में मैंने उसे पढ़ाया है. कल हमने कॉटन टेक्सटाइल को शुरू किया था पढ़ाना और कॉटन टेक्सटाइल के सारी बेसिक क्राइटेरियाज को हमने पढ़ा था. कल का लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या स्टोरी रही कॉटन टेक्सटाइल की इंडिया में. एक बार और हम इसे शुरुआत करते हैं, 2 मिनट में रिवाइज करते हैं कल क्या पढ़ा था, एंड देयर आफ्टर विल कंटिन्यू टुडे, और हम ख़त्म कर लेंगे आज हमारा कॉटन टेक्सटाइल. वी हैव स्टडीड दैट इन अवर एंशिएंट इंडिया, हमारे प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत से ही, सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिया हैज़ बीन एग्रीकल्चरल रिच इकोनॉमी, एंड इन अवर ब्लैक सॉइल, in our regur soil, black soil is also called regur soil, cotton is found. Okay, and cotton has been always qualitative for our country. So since ancient time we have been using cotton, and by the technique of handloom spinning and weaving. Yesterday I have taught you about the difference between handloom and power loom. Handloom, where we use the production technique with our hands, or it can be considered as manual work, and power looms means where the production is done with the help of machines. Okay, so this is the basic difference between handloom and power loom. So India since ancient time is working on the handloom techniques, and in modern era such as 18th century or even till 19th century, there were certain handloom industries in India of cotton as well as cotton textiles, and some textile industries were also used manually. Then later on, with the help of Britishers only, there has been an establishment of power loom in our country. So as we were discussing about the history of cotton textile, so I have taught you that since ancient time we are using handloom techniques for the production of cotton. All right, but same in the 18th century, where we were emphasizing to use the handloom techniques to produce cotton, the Britishers in England have successfully set up power looms, which came into use in 18th century. ओके, तो ब्रिटिशर्स उस समय पावर लूम्स पे काम करना चालू किए थे, एंड पावर लूम से वो कपड़े बनाते थे, और कॉटन, जिस कॉटन का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स करते थे अपने पावर लूम में, वो इंडिया की ही कॉटन थी. यानी रॉ मटेरियल बिलोंग्स टू इंडिया, एंड आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स दैट द रॉ मटेरियल was always qualitative in India. So the finished product which was being produced by Britishers were qualitative, no doubt. And since ancient time, there were the people who always demand the Indian clothes when we produce this with our handloom techniques. So you all imagine, with the same raw material, with the help of power looms, if the garments are being ready, so it will be more qualitative, it will be more fancy as compared to the handloom techniques. So there will be much more demand of those clothes in comparison to the Indian made clothes. Let me clear you with an example. Suppose your mother is she is busy in preparing a sweater for you. In the winter season, your mother is preparing a sweater for you, and in our childhood this had been happened with me, and I guess कि आपके साथ भी ये ज़रूर हुआ होगा कि आपकी मदर ने आपको बुलाया है कि come here, and she has taken a size of your body, that how this sweater will be fit for you. It has been happened, yes. But now compare it that red color or green color, any color you take,
द स्वेटर इज मेड बाय योर मदर, ठीक है, that has been prepared by your mother herself, and the same color sweater you have purchased from the market. Now mother love is unconditional, don't include it in this topic, ठीक है, that is an exception that can't be compared with anything in the world. But let me remind you that we all will prefer the sweater which we are going to purchase from the market. हम हमेशा उसी स्वेटर को प्रेफरेंस देंगे जो हम मार्केट से खरीद के लाए हैं। माता जी ने काम किया है, माता जी ने स्वेटर बुना है, उसकी कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन अगर हम फैंसी दिखने की बात करें तो हम रेडीमेड स्वेटर ही जाके मार्केट से खरीदने वाला ही पहनेंगे। बात समझ में आ रही है? द रीज़न बिहाइंड इज कि वो ज़्यादा फैंसी दिख रहा है, ये हाथ से काम हुआ है, वो मशीन से काम हुआ है, वो ज़्यादा आपको फैंसी देखने में दिख रहा है। सेम वॉज विद इंडिया इन 18th century when the power looms were established in England. So the Indian handloom textile market was ready to supply less qualitative cotton clothes because there were less demand of Indian हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। भारत के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड अंग्रेज़ों के पावरलूम्स के सेट करने के बाद एकदम से क्या हो गई, धीरे धीरे कम होने लगी, धीरे धीरे क्या घटने लगी। रीज़न क्या था कि सेम रॉ मटेरियल से अगर अंग्रेज आपको काम करके दे रहे हैं तो वो ज़्यादा फैंसी दिख रहा था और वो सस्ता भी था। सस्ता क्यों पड़ेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों होगा, आप खुद कंपेयर करिए। आप अगर मशीन से प्रोडक्शन करेंगे तो एक महीने में न जाने कितने कपड़े आप बना लेंगे, और अगर आप मैन मेड यानी मैनुअल काम कराएंगे तो उसकी एक जो है कि इफ़िशियंसी है कि हम एक दिन में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा ही काम कर सकते हैं। बट मशीन हैड नो फीलिंग्स एंड इमोशंस। रात को 2 बजे भी मशीन को चालू करेंगे तो वैसा ही कपड़ा बना के देगी जैसा उसमें सारे के सारे टेक्निक्स फिट किए गए हैं। तो निस्संदेह अंग्रेज़ों की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा फैंसी थे और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकते थे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जिस वजह से पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिमांड किसकी हो गई, अंग्रेज़ों के कपड़ों की, और भारत के हैंडीक्राफ्ट की डिमांड डिक्रीज होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। एंड लेट मी टेल यू, देयर वाज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच वॉज हेल्ड इन 1939 एंड स्टार्टेड इन 1939 एंड इट वॉज almost end in the 1945, and this led an impact for the more demand of cotton clothes in the rest of the world. दुनिया भर में कॉटन क्लोथ्स की और ज़्यादा डिमांड होने लगी, जिस वजह से अंग्रेज़ों को भारत में एक कॉटन टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश करना पड़ा। कहाँ पे इस्टेब्लिश किए? मुंबई में, ईयर 1854। ये आपको याद रहना चाहिए। 1854 में पहली टेक्सटाइल मिल लगाई गई थी भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा, महाराष्ट्र में, मुंबई में। और क्यों महाराष्ट्र में लगाई गई? महाराष्ट्र में इसलिए लगाई गई क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया वहीं पे आपका इस्टेब्लिश किया जाता है जहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो, और कॉटन ब्लैक सॉइल पे प्रोड्यूस किया जाता है। ब्लैक सॉइल इज़ इन द महाराष्ट्र, इट इज़ इन द साउदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, it is in the southwest part of Madhya Pradesh, it is in the part of Andhra Pradesh and full Maharashtra, almost पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र है ये ब्लैक सॉइल पे है, और ब्लैक सॉइल पे कॉटन की खेती अच्छी तरीके से की जा सकती है, ठीक है। तो जिस वजह से इजीली रॉ मटेरियल मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा और रॉ मटेरियल सस्ता होगा, इसलिए महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया। एंड वन थिंग मोर, आप एक चीज़ और यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि जितनी भी आप मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ देखेंगे वो साउथ इंडिया में ही इस्टेब्लिश है, और साउथ इंडिया में ही इसलिए इस्टेब्लिश है क्योंकि रॉ मटेरियल्स ज़्यादा से ज़्यादा वहीं अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ अलुवियल सॉइल है, एंड इन अलुवियल सॉइल देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स, दैट इज़ व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, पल्सेज, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हम अच्छे तरीके से करते हैं एलुवियल सॉइल पे, जिस वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ कम है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, दिस ऑल, झारखंड ऑल्सो, ये जितने स्टेट्स हैं, इवन बिहार भी, ये जितने आपके स्टेट्स हैं
यहाँ पे देखेंगे तो इंडस्ट्रीज़ लगने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडिया वाले बेल्ट पे। रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है, और उस गोंडवाना लैंड में वाले पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं। ऑलराइट, मोर रॉक्स वर देयर, एंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स the various types of raw materials were found, ores were found, and due to that there will be a more availability of raw materials in the southern part of India. So thus it is a successful it will be a successful एक सफल कह सकते हैं कि प्रायोजन रहेगा वहाँ पे औद्योगिकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ओके, तो चलिए यहाँ तक हमने रिवाइज किया, अभी इसको आगे ज़रा सा देखेंगे। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, लेबर इन मॉइस्ट क्लाइमेट्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन। तो ये जो ऊपर मैंने बताया, इसी को ये थोड़ा सा और डेप्थ में बता रहा है कि शुरू के ईयर्स में, शुरू के कुछ सालों में कॉटन टेक्सटाइल को महाराष्ट्र और गुजरात के बेल्ट में ही लगाया गया। कारण था रॉ मटेरियल का अच्छे तरीके से मिलना, एक अच्छा मार्केट मिलना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सबसे बड़ी बात की रॉ मटेरियल्स और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा पोर्ट फैसिलिटी। यस, 1854 वगैरह में पोर्ट से बहुत ज़्यादा ट्रेड होते थे, पोर्ट, बंदरगाह, और ये बंदरगाह जो है ये आपके कोस्टल एरियाज़ पे ही रहता है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे के सारे आपके स्टेट्स क्या हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, तटीय क्षेत्र हैं। इस वजह से वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस थे इंडस्ट्रीज़ के। द इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्ड विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर, कॉटन बॉल प्लकर्स, वर्कर्स इंगेज्ड इन गाइनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्वीविंग। क्या बता रहा है कि इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर से बड़ा क्लोज लिंक था। इसलिए क्लोज लिंक था, क्लोज लिंक होने का कारण ये था कि कॉटन एक एग्रीकल्चरल क्रॉप ही है, कैश क्रॉप है, ठीक है। और जितने भी फार्मर्स, जितने भी कॉटन बॉल प्लकर्स क्या होते हैं, जैसे कॉटन जब उगाया जाता है तो वो छोटे छोटे ऐसे बॉल की तरह रहता है, उसको पिकअप किया जाता है और फिर उसे स्पिन करके, वीविंग करके उसे कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सूती निकालने के लिए जितने भी आपके वर्कर्स लगेंगे, लेबर लगेंगे, ये स्किल्ड होने चाहिए, और इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाती थी ये कॉटन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो उसे गाइनिंग करने के लिए, स्पिनिंग करने के लिए, ठीक है, वीविंग यानी बुनने के लिए, ठीक है, डाइंग यानी कलरिंग के लिए, डाइंग का मतलब होता है कलर, डिज़ाइन करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, ठीक है, सीविंग करने के लिए, ठीक है, डिलीवरी कर, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपका लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॉटन इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता था। द इंडस्ट्री बाई क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल एंड डाइज, मिल, स्टोर, पैकेजिंग, अदर मटेरियल इंजीनियरिंग। इसकी वजह से और भी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ गई, जैसे केमिकल और डाई इंडस्ट्रीज़ की, मिल स्टोर्स की, पैकेजिंग मटेरियल की, कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स की इंडस्ट्रीज। तो ये कॉटन की वजह से और भी कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सारी इंडस्ट्रीज़ की भी आपकी डिमांड क्या है, बढ़ती गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रही हैं। आगे एक नेक्स्ट पैराग्राफ और अभी हम देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पैरा। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, weaving highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and design in weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. very important line क्या दे रहा है कि स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड रहा महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में, लेकिन वीविंग हाईली डिसेंट्रलाइज्ड हो गया ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट इन इंडिया। क्या इसका मतलब हुआ, एक स्पिनिंग एक वीविंग, दो वर्ड्स है, कल भी मैंने डिस्कशन किया था, स्पिनिंग और वीविंग, ठीक है। स्पिनिंग मतलब जो आप देखते हैं कि राउंड करके हम उसे धागे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वीविंग उस स्पिनिंग किए हुए धागे से हम उसे बुन के और तैयार करते हैं। तो ये स्पिनिंग जो है, ये 3 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, इसी 3 स्टेट्स में सेंट्रलाइज थे। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि यहीं पे स्पिनिंग टेक्निक्स परफॉर्म की जाती थी। लेकिन अगर हम वीविंग टेक्निक की बात करें तो बुनाई की बात, कढ़ाई की बात, ये सारी बात ऑलमोस्ट लगभग सारे अच्छे स्टेट्स में वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, या सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये 2 वर्ड्स का अपने आप में मतलब है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण,
डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, यानी कि विकेंद्रीकरण और हर जगह फैला हुआ, और सेंट्रलाइज मतलब कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में ही उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडिशनल स्किल्स ऑफ कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हो गया, वीविंग का जो आगे दे रहा है कि हर जगह डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ रहेगा कि कश्मीरी शॉल, राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थानी आपको कपड़े मिलेंगे, बनारस में आएंगे तो बनारसी साड़ी मिलेगी, साउथ में जाएंगे तो साउथ इंडियन क्लोथ्स मिलेंगे। तो हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी हो गई। ठीक है, इसी को हम एक तरह की वीविंग टेक्निक कह सकते हैं कि हर जगह अपनी अपनी वीविंग टेक्निक है। कहीं कढ़ाई का ज़्यादा काम है, कहीं किसी तरह के कपड़े का काम है, कहीं किसी तरह के, तो अलग अलग तरीके का काम अलग अलग स्टेट्स में होने लगे। तो ये वीविंग टेक्निक थी जो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। लेकिन स्पिनिंग, ठीक है, आज भी कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं 3 स्टेट्स में होती है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। India has world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot much use of high-quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, powerloom, and in mills. देखिए क्या बता रहा है, another very important line. India has world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric. आज की बात बता रहा है कि इंडिया स्पिनिंग में तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करती है, मतलब हम यार्न जो बनाते हैं, जो हम धागा प्रोड्यूस करते हैं कॉटन बॉल से, वो तो आज भी हम बहुत बेहतरीन तरीके का करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी वीविंग टेक्निक, हालांकि डिसेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग स्टेट्स में इसके अपने काम है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटेटिव वीविंग हम आज भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें विदेशों से आज भी इंपोर्ट करना पड़ता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। और वीविंग जो है कि हैंडलूम से भी कराई जाती है अभी भी, ठीक है, पावरलूम से भी कराई जाती है मिल्स में। हैंडलूम का एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके जैसे हम लोग के रसना में भी है खादी भंडार वगैरह की दुकानें, तो इसमें कुछ काम है जो हैंडलूम के द्वारा किया जाता है, बाकी पावरलूम से आपकी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चलती हैं। चलिए, तो आज अभी इस वीडियो में यहीं तक, यहाँ तक आप रिवाइज करिए, कल हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन गुड डे, और कमेंट्स करिए। एक भी बच्चे का तो कमेंट ही नहीं आता है, हम लोग तो पढ़ा दे रहे हैं, मेरे को तो यही नहीं लगता है कि कोई वीडियो देखता भी होगा। तो आप कमेंट करिए, एटलीस्ट तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो पूछिए उसमें। मेरा मैसेज है, मेरा नंबर आप लोग के पास होगा, नहीं होगा ग्रुप से ले लीजिएगा, राघवेंद्र सर से ले लीजिएगा, और मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिए कोई डाउट है तो। लेकिन आप कम से कम उसमें अटेंडेंस तो लगाइए कि कितने लोग देखे, एक भी कमेंट ही नहीं आता है, क्या ही बोलूँ मैं।